Assalamualaikum students, how are you? I'm your English teacher. Today I will teach you the poem There is a Good Time Coming for class 10th. First of all, I will give you the introduction of the poet. This poem is written by Charles Mackay, who was born in 1814 and he was died in 1889, a Scottish songwriter. He was born in Perth. His mother died while he was an infant. He went to school in Brussels in 1828 and began writing verses in both English and French in 1830. He returned to London and worked for the Morning Council till 1804 and then became editor of Argus. Beside his extremely popular song, some of which is still live, Mackay wrote books on travel, history, and biography, and was a good all-round journalist. Now, I will read the poem. There is a good time coming, boys, a good time coming. We may not live to see the day, but earth shall glisten in the ray of the good time coming. Second stanza. Cannonballs may add the truth, but thoughts a weapon is stronger. We will win our battle by its aid. Wait a little longer. Third stanza. There is good time coming, boys. A good time coming. A good time coming. The pen shall suppress the sword. The pen shall suppress the sword, and right, not might, shall be the Lord in the good time coming. Now, stanza number 4. Worth, not birth, shall rule mankind and be knowledge stronger. The proper impulse has been given. Wait a little longer. Now stanza number 5. There's good time coming, boys. A good time coming. War in all men's eyes shall be a monster of iniquity in the good time coming. Nation shall not quarrel then, to prove which is the stronger. No slaughter, man, for glory's sake, wait a little longer. There's good time coming, boys, a good time coming. Let us add it all we can. Every woman, every man, the good time coming. Smallest help, if rightly given, make the impulse stronger. I will be strong enough one day. Wait a little longer. The poet of this poem is Charles Mackay. Now I will read the first stanza.
There's a good time coming, boys. A good time coming. We may not live to see the day, but earth shall glisten in the ray of the good time coming. The poet believes that a good time is about to come, when there will be no war, powerful will not rule the world, and the pen will take place of sword. In these lines, poet addresses the boys and assures them that good time is about to come in near future. We may not be able to see that good day, but it will be seen by our next generation. The earth will be brightened by the effect of good time. Now, I will explain this stanza in Urdu. लड़कों, अच्छा वक्त आ रहा है, एक अच्छा वक्त आ रहा है। हम इस दिन को देखने के लिए शायद जिंदा ना रहें, लेकिन ज़मीन शुआ से जगमगा उठेगी आने वाले अच्छे वक्त से। क्योंकि वक्त आने में भी टाइम है, शायरी कह रहा है, और हो सकता है कि हम वो वक्त देखने के लिए ज़िंदा ना रहें, लेकिन वो पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये ज़मीन खुशियों से जगमगा उठेगी और अच्छा वक्त आने वाला है। The second stanza. Cannonballs may add the truth, but thoughts are weapons stronger. We will win our battle by its aid. Wait a little longer. Now the explanation of this stanza. In these lines, poet says that cannonballs will make the fact clear. In order to achieve the truth, battle, no doubt, could be fought, but constructive thoughts are stronger weapon which can make us to win the battle of truth. So, the good time is about to come. We should wait for a little time. Now explanation in Urdu. तोप की गोली सच्चाई की मदद कर सकते हैं, मगर सोच मजबूत हथियार है। हम इसकी मदद से अपनी जंग जीतेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करो। Now the third stanza. There is good time coming, boys. A good time coming. The band shall suppress the sword and right, not might, shall be the Lord. In the good time coming. In these lines, poet says, in these lines I will go, first of all I will explain this stanza. सबसे पहले मैं इसको explain करूँगी इंग्लिश में. In these lines, poet says that good time is about to come
In those days, the pen will take place of sword. Only right thing will hold good against power, and during that period, everyone will enjoy its own right. अब मैं इस स्टैंजा को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। लड़कों, अच्छा वक्त आ रहा है। एक अच्छा वक्त आ रहा है। कलम तलवार पर गालिब आ जाएगा। ताकत नहीं, हक हुक्मरान होगा आने वाले अच्छे वक्त में। शायर ये कहता है कि जो है तलवार से जंग लड़ी जाती है, लेकिन अब तलवार नहीं कलम गालिब आएगा, और जो हुक्मरान होगा वो ताकत के बल पर नहीं आएगा, बल्कि जिसका हक होगा वो ही हुक्मरान बनेगा आने वाले अच्छे वक्त में। नाउ स्टैंजा नंबर 4। Worth, not birth, shall rule mankind and be acknowledged stronger. The proper impulse has been given. Wait a little longer. अब मैं इस स्टैंजा को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। In these lines, poet says that in that period, a person will be honored and respected on the basis of individual merits and not on the hereditary basis. This change in process, we have to wait for little time. अब मैं इस स्टैंजा को उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ। विलादत नहीं काबिलियत, नौ इंसानी पर हुक्मरानी करेगी और उसे तस्लीम करना मजबूत तर होगा। इस स्टैंजा में वो समझा रहे हैं कि जिस तरह से होता है कि एक बादशाह है या कोई इसके जो हुक्मरान है, तो उसकी यहाँ जो उसकी औलाद होती है वो तख्त संभालेगी, उसके बाद उसकी औलाद, उसके बाद उसकी औलाद। लेकिन वही कहते हैं अब ये चीज़ विलादत फैसला नहीं करेगी। अब होता क्या है कि वो हुक्मरान बिठा दिए जाते हैं, लेकिन उनमें काबिलियत और अहलियत नहीं होती हुक्मरानी की, तो वो मुल्क का बिगाड़ करते हैं। मुल्क जो है उनकी इस वजह से, उनकी नाअहलियत की वजह से तरक्की नहीं करता, डूब जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये सिलसिला चला आ रहा है कि जो हुक्मरान है उसकी आने वाली औलाद, आने वाली नस्लें हुक्मरानी संभालेंगी, एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस हुक्मरानी का फैसला विलादत नहीं करेगी बल्कि काबिलियत करेगी। जिस इंसान में काबिलियत होगी वो उस मुल्क का हुक्मरान बनेगा, और ये बात अब तस्लीम की जा चुकी है कि जो काबिल है वो ही हुक्मरान होगा। और ये बहुत एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है जो कि की जा चुकी है, और ये बिल्कुल सही फैसला किया गया है अब आने वाले वक्तों के लिए कि अब लोगों को अजाब नहीं झेलना पड़ेगा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्मरान आएगा जिसको वो चाहते हैं। बस उसने शायद ये कहता है
कि जिस तरह हम तकलीफ़ और परेशानी में हैं वो उम्मीद दिला रहा है, वो खुशी का इंतज़ार करवा रहा है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है और अच्छा वक्त आने वाला है। There's good time coming voice and good time coming. War in all men's eye shall be a monster of iniquity in the good time coming. Now I will explain the stanza number 5. इस स्टैंजा को मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। In these lines, poet says that a good time is about to come when mankind will hate the war as the force of injustice and unfairness. The result will be that there will be peace and prosperity in the world. अब मैं इस स्टैंजा को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। लड़कों, अच्छा वक्त आ रहा है। एक अच्छा वक्त आने वाला है। जंग तमाम लोगों की नज़रों में होगी। एक नाइंसाफ़ी का अफरियत आने वाले अच्छे वक्त में। अब वही कह रहा है कि जब तक सही लोग नहीं आते तो उस वक्त तक हालात सही नहीं होंगे। आपस में लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, जंगें होंगी और ना जब जंग होती है तो इसमें जस्टिस और इनजस्टिस को नहीं देखा जाता। जो ताकतवर होता है वो गालिब रहता है और कमज़ोर जो है जुल्म बर्दाश्त करता है। तो उसने ये कह रहा है कि एक जंग खड़ी है सामने और उसमें एक नाइंसाफ़ी उस जंग में होगी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आने वाला वक्त अच्छा है और अच्छा वक्त आकर रहेगा। Now the next stanza. Nations shall not quarrel them to prove which is the stronger. No slaughter man for glory's sake. Wait a little longer. अब इस स्टैंजा को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। In these lines, poet says that when the good time will come, there will be no wars and quarrel between nations of the world for the sake of power and domination, and there will be no human killings for the sake of glory. You have to wait little more. अब मैं इस स्टैंजा को उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी। फिर कुव्वतें आपस में नहीं लड़ेंगी ये साबित करने के लिए कि कौन ताकतवर है, ना ही शोहरत की खातिर इंसानों का
कत्ले आम होगा। थोड़ा सा और इंतज़ार करो। शायर कहता है कि जब हुक्मरान सही सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो सही हुक्मरान आएगा उसे पता है कि जंग किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जंग करने से नुकसान ही होता है, लोगों की जानों का ज़िया होता है और माली मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम जंग लड़ें और लोगों को और ख़ुद को मुसीबत और परेशानियों में धकेलें, तो वही चीज़ हम अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए करें और इस तरह मुल्क को ताकतवर बनाएं। तो अच्छी और नई सोच जो है वो आने वाले वक्त के लिए एक नया तब्दीली होगी, एक नया चेंज होगा लोगों के लिए। और जैसे कि पहले होता था कि लोग जंगें लड़ते थे बिला वजह, कोई उनका मकसद नहीं होता था। वो जंग लड़ते थे शोहरत की खातिर और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा करने के लिए। उनका मकसद कुछ ऐसा नहीं होता था कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं या किसी अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी शोहरत के लिए। और उनको इस बात की हविस जाती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा करें और उसके लिए लोगों को मारें और ख़त्म करें। और उन्हें इस बात का कोई सदमा दुख नहीं होता था कि इसमें हज़ारों लाखों लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। तो वो कह रहा है कि जब सही हुक्मरान हमें मिल जाएंगे हमारी कौमों को, तो ये जंगें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अच्छी और मुस्बत सोच लेकर आ रहे हैं। तो इसमें वो बस ये कह रहा है कि ये अच्छा वक्त अब आने वाला है और हमें इस वक्त का बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। Now the stanza number 7. I will read the stanza 7. There's good time coming, boys, and good time coming. Let us add it all we can. Every woman, every man. The good time coming. अब इस स्टैंजा को मैं एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश में। In these lines, poet says that let us give help to bring about good time in the world. Each one of us should aim at bringing about good time in the world. अब मैं एक्सप्लेन करूँगी उर्दू में। लड़कों, अच्छा वक्त आ रहा है, एक अच्छा वक्त आ रहा है। आओ जहाँ तक हमसे हो सके उसकी मदद करें। हर एक औरत, हर एक मर्द, अच्छा वक्त आ रहा है। इस स्टैंजा में शायर कहता है कि अब एक अच्छा वक्त आने वाला है और एक अच्छा वक्त आएगा। तो इस अच्छे वक्त को लाने के लिए हमें भी इसमें शामिल होना है और हम किस तरह से इस वक्त को ला सकते हैं, इसके लिए कोई एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी है और हम एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हों। हर एक औरत दूसरी औरत की मदद करे और हर मर्द दूसरे मर्द की मदद करे। इस तरह क्या होता है कि जब जंगें होती हैं तो हज़ारों लोग मारे जाते हैं और हम किस तरह से इस चीज़ को रोक सकते हैं। हम इस तरह से रोक सकते हैं
कि हम दुनिया में अच्छे ख़यालात फैलाएं, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लाएं, उन्हें बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, जंग अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं हैं। लोगों को हमें मिलकर रहना है और जितना हम एक दूसरे की मोहब्बत दुनिया में बांटेंगे, दुनिया जो है रोशन होगी और मतलब बहुत खुशगवार लोगों की ज़िंदगियाँ हो जाएंगी और लोग अमन चैन और सुकून से रहेंगे, क्योंकि जंग और लड़ाइयाँ मुसीबतें और परेशानियाँ लाती हैं। चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे अवाम हो, उस मुल्क के रहने वाले हों, सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। तो हम इसके लिए किस तरह से इस जंग को रोकने के लिए कर सकते हैं, किस तरह हम फाइट कर सकते हैं जंग के ख़िलाफ़, इस तरह से कि हम लोगों की सोच को बदलें, लोगों के ख़यालात को बदलें, आपस में एक दूसरे से बात करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी है और हमें जो भी मामलात हैं वो अपनी बातचीत से, एक दूसरे की मोहब्बत से हम एक दूसरे के लिए करें और अपने ख़यालात पहुँचाएँ, ताकि लोगों के जहनों से जो है निगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो, मनफी ख़यालात ख़त्म हो और लोग एक पेज पर आ जाएं। Now I will read the 8th and last stanza of this poem. Smallest help, if rightly given, make the impulse stronger, will be stronger enough one day. Wait a little longer. Now I will explain this stanza. पहले मैं इस स्टैंजा को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। In these lines, poet says that we should keep in our mind that within our own limited spheres of life, if we extend sincere cooperation and help, though smallest, but with almost devotion, it would matter a lot and would motivate to those times to come soon. He assures that it will be strong one day when the good time actually comes in the world. अब इस स्टैंजा को मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी। वक्त पर दी हुई थोड़ी सी मदद भी इस ख्वाहिश को मजबूत बनाती है, यहाँ तक कि वो एक दिन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। थोड़ा सा और इंतज़ार करो। इस शेर में शायर कहता है कि हमें हमारे पास जितनी भी सलाहियतें हैं, हम जितना भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है, तो हम उसको यूटिलाइज़ करें और एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे की मदद करें और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि मदद करने से जो है मदद एक चेन की तरह होती है, आगे बढ़ती जाती है और हमें सही वक्त पर सही काम करना है। यानी हमें किसी की मदद जो करनी है सही वक्त पे करनी है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ज़रूरतमंद है और उसको उस वक्त ज़रूरत है, अगर हम उसकी मदद उस वक्त नहीं करते हैं और हम सोचते हैं बाद में कर देंगे, तो वो हमारी बाद की मदद तो उसके लिए बेकार है, उसे तो उस वक्त ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है और हमें ये देखना है कि हमें जो है मदद जो करनी है हमें किस वक्त करनी है, कौन सा राइट टाइम है जिस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है और इस ख्वाहिश को हमें मतलब
मजबूत बनाना है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें। जब हम एक जिसकी मदद करेंगे ज़ाहिर है वो खुश होगा, फिर वो अगले की मदद करेगा। इस तरह से ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन हो जाएगी और हम सब यहाँ रहते हुए खुशी महसूस करेंगे और दुनिया में अमन चैन सुकून होगा। बस हमें एक काम करना है कि हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार करना है और इंतज़ार के साथ साथ उस वक्त को लाने के लिए हमें जद्दोजहद भी करनी है। आई होप दैट यू विल understand the explanation of this poem very well, and that's the end of this chapter, and Allah Hafiz.